morning, all of you. Last lecture, we studied about the living world and morphology. Okay, we finished the definition of living on the basis of their properties. We studied 6 properties of the living organisms, and we find the defining properties of the living organisms. Correct? Is it correct? Yes, sir. Okay. So, tell me which are the defining property of the living organisms? Defining property of the living organisms. Metabolism, Metabolism. Then presence of cell, presence of cell. homeostasis, Vaishnavi gives the answer of the homeostasis. growth and development. No, I want only defining property. You should have to differentiate the defining and non-defining properties. Response to stimuli. Response to stimuli. Okay. So in homeostasis, the response to stimuli comes under that. Okay. Response to stimuli. Actually, the original character is irritability. Original character is an irritability. I not given in last picture that. Irritability. This is the original character. Okay. And this word comprises homeostasis, then response to stimuli. It comprises this. Okay. And irritability is the organism of living organism that is to give response to stimuli. So this property comes under that. Metabolism, then irritability, and the third one is which property is that? That property you not tell me. Presence of cell. Yes, presence of cell. It is also the defining property or the definite characteristics of the living organism. Defining property or the definite characteristics is what? Which is only present in the living organism. Okay, that is we call the defining. After that, we will forward it to the morphology. Before studying the morphology, we studied the definition of the morphology. Okay, what is the definition of morphology? Tell me the answer. Study of external structure of an organism. Study of external structure of an organism. That is we called, that is the morphology. Okay, the anatomy is internal organization. Study of internal organization. Morphology is study of external structure of an organism. ठीक है? तो अब हम आगे चलते हैं. हमने उसके बाद प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी देखना शुरू की है. In plant, morphology of the plant consists of 2 parts. One is shoot system and then another one is a root system. We started shoot system and in that we completed the stem. Okay. Now we are continuous with the leaves. Branch is a part of stem. Branch is a part of stem. But one statement is most important. Which statement is that? Branch is stem ka part hai. See, this is actually your stem. Then when the stem divided into branches, see here. अब यहाँ पर stem branch में divide हो गया. So ये हुआ stem की branch. तो already ये stem के अंदर आ गया. लेकिन branches के अंदर convert होना कि किस plant का characteristic feature है. आप देखो, मैं आपके सामने कुछ examples रखता हूँ. इन एग्जांपल्स को ब्रांच एंड अनब्रांच्ड प्लांट इसमें आपको मुझे डिवाइड करके बताना है. समझ में आ रहा है आपको? मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखूंगा, आपको क्या करना है, इसमें ब्रांच एंड अनब्रांच्ड ऐसे आपको मुझे डिवाइड कर देना है. ठीक है. सो अब हम देखेंगे यहां पर एग्जांपल्स. सी हियर एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1 दैट इज मेज.
another example, mango. The next example, that is sugarcane. The another one example, that is hibiscus. Okay. The next example, wheat. The next, rice. सभी एग्जांपल्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। अब ये जितने एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखा है, और एक एग्जांपल आपको दे दूं। यहां पर टर्म है टैमरिन, ठीक है। अभी बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपके सामने दिए, 8 एग्जांपल्स है यहां पर। ओके, अब मेज इसे हम मक्का कहते हैं, ठीक है। मैंगो आपको मालूम है, शुगर केन ये भी आपको मालूम है, हिबिस्कस, हिबिस्कस जास्वंद, ओके। देन व्हीट ये भी आपको मालूम है, राइस भी आपको मालूम है, और टैमरिन भी आपको मालूम है, टैमरिन, इमली, ओके। सो वन बाय वन, मेज कम्स अंडर द, टेल मी, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड स्टेम? Unbranched. अनब्रांच्ड स्टेम, अनब्रांच्ड, ठीक है। मैंगो Branched. 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 Sugarcane Unbranched. 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 Hibiscus Branched. Branched. very good, branched. Wheat Unbranched. Unbranched. very good, unbranched. Rice Unbranched. 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 very good, unbranched. Tamarind Branched. Branched. very good, branched. ठीक है। अभी देखो, कुछ प्लांट के अंदर स्टेम ब्रांचिंग कंसिस्ट करता है, कुछ प्लांट में स्टेम ब्रांचिंग कंसिस्ट नहीं करता। समझ में आ रहा आप लोगों के? तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, हम इन्हें एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, हम इन्हें क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म्स कहते हैं, एंजियोस्पर्म्स। तो ये जो एंजियोस्पर्म्स है, they are again divided into, ये जो angiosperms है, they are again divided into 2 types, that is monocot and another one is a dicot, monocot plant and dicot plant। समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं आपको क्या कह रहा हूं? तो एंजियोस्पर्म्स ये 2 तरह के प्लांट के अंदर डिवाइड होते हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट। मोनोकॉट जिसके सीड में एक ही कॉटिलेडॉन होता है, मतलब जिसके एम्ब्रियो में एक ही कॉटिलेडॉन होता है, और डाइकॉट जिसके एम्ब्रियो में 2 कॉटिलेडॉन होते हैं। डाइकॉट जिसके एम्ब्रियो में कितने कॉटिलेडॉन होते हैं? 2। कैसे पहचानोगे आप? कैसे? एक कॉटिलेडॉन, 2 कॉटिलेडॉन कैसे पहचानोगे आप? सिंपल है, आपके पास में बहुत सारे सीड आते हैं, आप उनको खाते भी हो, ठीक है। आमंड का सीड आप खाते हो, अच्छा मैंगो का सीड आप खाते नहीं हो, लेकिन आपने देखा है उसको, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे। अभी हम वो फल नहीं खाते, क्या बोलते हैं उसे आप? I think so it is called as pea, which is also called as a watermelon, ठीक है। सो ये जो है, इनके सीड आप देख लो, इनके सीड 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं इजीली। सही है, आप लोगों ने देखा है इसको, ये 2 पार्ट में इजीली डिवाइड होते हैं, और 2 पार्ट में डिवाइड होने के बाद सी ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड हो गए, और 2 पार्ट में डिवाइड होने के बाद इसमें ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। Is it correct? इंटरनली ऐसे स्ट्रक्चर दिखते हैं, ठीक है। अब इंटरनली स्ट्रक्चर आपको दिखे हैं, तो ये जो है ये कॉटिलेडॉन 1 है और ये कॉटिलेडॉन 2, और ये बीच में आपको दिख रहा है एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। तो ये जो प्लांट हुआ समझो पी, तो पी प्लांट ये हुआ डाइकॉट, और कुछ सीड ऐसे होते हैं जो ऐसे 2 पार्ट में इजीली डिवाइड नहीं होते। आप लोगों ने देखा है, व्हीट का सीड देखा है आपने, मेज का सीड देखा है आपने, इनके सीड 2 पार्ट में डिवाइड नहीं होते। क्यों? तो वो सिर्फ सिंगल कॉटिलेडॉन कंसिस्ट करते हैं।
दैट कंसिस्ट द सिंगल कॉटिलेडॉन। अभी यहाँ पर मुझे जो आपको बताना है ब्रांच अनब्रांच, तो ये नेचर कैसे डिफरेंशिएट आप करोगे? तो ये नेचर आपको मोनोकॉट और डाइकॉट के अंदर डिफरेंशिएट करना है। आई थिंक यू ऑलरेडी स्टडीड इन द 10th and 9th classes. Okay, so can you differentiate the monocot plant and dicot plant in all these examples? क्या आप मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट डिफरेंशिएट कर सकते हैं ये सारे एग्जांपल्स के अंदर? टेल मी। Yes. Yes. तो बताइए इसमें से कौन सा प्लांट मोनोकॉट होगा, कौन सा प्लांट डाइकॉट होगा? Mango monocot. मैंगो मोनोकॉट। अच्छा, और टैमरिन डाइकॉट। टैमरिन डाइकॉट। अच्छा ठीक है, और Maize monocot. मेज मोनोकॉट। ठीक है, Mango dicot. मैंगो डाइकॉट। नालकर सेज करेक्ट, मैंगो इज अ डाइकॉट नॉट द मोनोकॉट। ओके, अब इसमें आपको देखो एकदम इजीली डिफरेंशिएट करना है आपको। तो जितने ब्रांच प्लांट्स आपको इसमें दिख रहे हैं वो सारे ब्रांच प्लांट जो है वो क्या है? डाइकॉट है, और जितने आपको अनब्रांच में मिल रहे हैं वो सब क्या है? मोनोकॉट है। अब इसमें से मैंने दो काम कर लिए, एक तीर में दो शिकार जिसे कहेंगे। आपको मोनोकॉट डाइकॉट इंट्रोड्यूस कराया और उसके मतलब उसके कंपेयर के अंदर अदर थिंग स्ट्रेन को आपको डिफरेंशिएट कराया। ठीक है, तो इसके अंदर आप क्लियरली मतलब इस थ्योरी के जरिए से आप ये क्लियर कर सकते हैं कि कौन सा प्लांट डाइकॉट है और कौन सा प्लांट मोनोकॉट है। आपके सामने जो भी प्लांट आएगा आप उसको देख लो, आपको ब्रांच अगर दिख रहा है तो समझ जाना ये क्या है? डाइकॉट। आपको अनब्रांच अगर दिख रहा है जैसे क्या कहेंगे हम? मोनोकॉट कहेंगे। ठीक है, क्लियर? यहां तक आपको क्लियर हुआ? हाँ Yes sir. Yes, sir. यस सर। अब और एक चीज आपको मोनोकॉट डाइकॉट में मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा। वो चीज क्या है आपको जो डिफरेंशिएट करानी है मुझे? आपने मेज देखा है, शुगर केन को भी देखा है, मेज भी देखा है, शुगर केन भी देखा है आपने, उसके बाद व्हीट भी देखा है, राइस भी देखा है। इनके लीफ के अंदर आपको क्या सिमिलरिटी मिलती है? इनके लीफ अगर आप देखोगे तो इनके लीफ में आपको क्या सिमिलरिटी मिलती है? Parallel Parallel venation. वेरी गुड, ऐसा लीफ होता है, ऐसा लीफ होता है, और इसके वेरिएशंस ऐसे होते हैं, दैट इज पैरेलल वेरिएशन। ऐसे वेरिएशन होते हैं। ठीक है, ये सब के अंदर डिफरेंस बस इतना है कि राइस छोटा लीफ होता है और व्हीट शुगर केन मेज का लीफ बड़ा होता है। तो इनमें ये सिमिलरिटी है। तो मैंगो, टैमरिन, हिबिस्कस इसके अंदर कैसा होता है? Reticulate venation. Reticulate venation. वेरी गुड, ये ऐसे लीफ होता है और उसमें आप देखो ऐसे आपको डिफरेंशिएट होगा। तो रेटिकुलेट वेरिएशन उस लीफ के अंदर होता है। सो दिस इज अ डिफरेंस। यहां देखो लीफ के अंदर मैंने आपको डिफरेंस, लीफ तो हमको भी देखना है लेकिन हम अभी मोनोकॉट डाइकॉट देख रहे हैं, यहां आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां लीफ के वेरिएशन के अंदर डिफरेंशिएशन है। तो लीफ को जस्ट आप देखोगे तो आप उसको डिफरेंशिएट कर पाओगे कि कौन सा डाइकॉट है और कौन सा मोनोकॉट है। स्ट्रेन के ब्रांचिंग से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो और लीफ को देखकर भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि कौन सा डाइकॉट है और कौन सा मोनोकॉट है। और एक डिफरेंस आपको इसके अंदर बता दूं कि मोनोकॉट जितने भी प्लांट होते हैं उसके स्टेम वीक होते हैं। Parallel. मोनोकॉट जितने भी प्लांट हैं उनके स्टेम कैसे होते हैं? स्टेम ये वीक होते हैं। ठीक है, और जितने भी डाइकॉट प्लांट हैं इनके स्टेम कैसे होते हैं? देयर स्टेम आर स्ट्रॉन्ग। इनके स्टेम कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। दैट इज द डिफरेंस। अब मैंने आपको मोनोकॉट डाइकॉट के अंदर टोटल 3 से 4 डिफरेंस बताए, याद रहेगा आप लोगों को? Yes याद sir. रहेगा आप लोगों को? ओके, चलो अब इस स्टेम से आगे चलते हैं हम लीव्स की तरफ। Now leaves, it is green, flattened, green, flattened, photosynthetic part. It is a green, flattened, photosynthetic part of the plant. Morphologically यही दिखता है, ऐसे दिखते हैं हमको लीफ, ग्रीन दिखते हैं। फ्लैटन, फ्लैटन मतलब कैसे होता है? दोनों साइड से वो फ्लैट होते हैं
ओके, अगर ऐसे होते हैं दोनों साइड से, जैसे हम फ्लैटर पे गए तो ये अगर हम इसको लैटरल में देखेंगे ना, लैटरल में तो ऐसे दिखेगी। लैटरल समझ में आ रहा है आपको? लैटरल कैसे होता है? लैटरल समझ में आ रहा है? ये देखो मैंने ऐसे रखा आपके सामने, ये मेरे हाथ को, ठीक है, ये ऐसे रखा है। तो ये साइड जो आप देख रहे हैं, आर यू सीइंग दिस साइड, ये साइड जो आप देख रहे हैं, तो ये साइड हो गई लैटरल, ठीक है। अब मैं ऐसे करता हूं ऊपर की साइड, अब ये साइड आप जो देख रहे हैं वो है डोर्सल। अब इसको ऐसे करता हूं, ये साइड हो गई कौन सी? वेंट्रल। याद रखो मैं क्या बोल रहा हूं और मैं क्या बता रहा हूं। एवरीथिंग यू शुड हैव टू इन योर माइंड और यू शुड हैव टू रिमेंबर दिस, ओके। क्योंकि इस बेसिस पर आपको बायोलॉजी के अंदर बहुत सारे कंसेप्ट स्टडी करना है। मतलब देखो, जैसे हम ऐसे बताएंगे दी hand bones or the forelimbs are present to the lateral side of the body। मैं बता रहा हूं आपको, एक स्टेटमेंट मैंने आपके सामने रखा है, क्या है? forelimbs are present to the lateral side of the body। ये मेरे फोरलिम्ब है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरे फोरलिम्ब है। ये कहां है प्रेजेंट? ये मेरे लैटरल साइड में, ये सेंट्रल एक्सिस हुआ और दोनों के साइड में जो है लैटरल साइड। मैंने एग्जांपल आपको बताया कि जो भी बॉडी के पार्ट्स हमको स्टडी करना है तो इनके डायरेक्शंस, इनका लोकेशन, ये मैंने जैसे मैंने आपको बताया वैसे उसको याद रखना है, ठीक है। तो लोकेशंस कैसे आप फाइंड आउट करोगे? लोकेशंस आपको कैसे फाइंड आउट करना है? एकदम सिंपल वे ही आपको लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए मैंने जस्ट हाथ लिया, ठीक है, मेरा ये हाथ आपके सामने रखा हूं। अब आपको देखो, अब देखो इसको, तो ये साइड कौन सी? चलो बोलो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था lateral side, यस, इट इज अ लैटरल साइड। लैटरल दो हो गए, ये एक होगा और ये अपोजिट पे जो आएगा ये एक होगा, करेक्ट? ये एक हो गया और ये एक होगा, क्लियर? तो ये हो गए दो साइड लैटरल। अब मैं ऐसे करता हूं, ये सामने की साइड Dorsal, dorsal, डॉर्सल साइड, डॉर्सल। अब मैंने इसको ऐसे किया, कौन सी साइड होगी? ventral side, वेरी गुड। अच्छा, अब मैं ऐसे करता हूं और अब मैं ये फ्रंट और बैक, ये दो बता रहा हूं, फ्रंट और बैक। अब ये जो सामने का आपको दिख रहा है, इट इज एंटीरियर रीजन। याद रहेगा आपको, ये जो सामने का जो दिख रहा है आपको, वो क्या है? एंटीरियर रीजन। जैसे फिश का स्ट्रक्चर होता है, आप देखो यहां पर, ये आपके सामने फिश मैंने रखा। तो अब मैं क्या करूंगा इसको, देखो, तो माउथ कहां है इसकी? माउथ कहां है इसके? एंटीरियर पोजीशन पर है। और ये जो पिन आपको दिख रहा है, कॉर्डल पिन कहते हैं इसे, कॉर्डल, ओके। तो ये लास्ट का पिन, ये कौन से पोजीशन पर है? तो पोस्टीरियर पोजीशन पर है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? मैंने आपके सामने सारे डायरेक्शंस और सारे लोकेशंस आपको बता दिए। लैटरल, ओके, डॉर्सल, वेंट्रल, ओके, एंड देन फ्रंट साइड, that is called anterior position, and the back side that is called posterior position। देखो यहाँ पर हम एक टॉपिक देख रहे हैं, इट इज अ फाउंडेशन, इट इज अ ब्रिज कोर्स, ओके। एक टॉपिक के अंदर बहुत सारे अदर टॉपिक इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इन सारे कंसेप्ट को आपको याद रखना है, क्योंकि इसके क्या बोलेंगे हम इसे, एक्सेप्ट दिस, अगर इसको छोड़ोगे तो आपको कोई चीज याद नहीं रहेगी। मतलब आपको डायरेक्शन पूछा जाएगा तो आप नहीं बता पाओगे। अब मैंने अगर आपको कहा, अगर ये सारे डायरेक्शन आपके समझ में आ गए होंगे, तो अब आप लोग मुझे बताओ कि हमारा हार्ट कौन से साइड में? चलो बताओ, हमारे यहाँ पे हार्ट ventral, एट द वेंट्रल साइड, ठीक है। और हमारी बैक साइड मतलब क्या हो गई? ये डॉर्सल साइड, ओके, वेरी गुड। तो ये आपको याद रखना चाहिए। चलो अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। तो लैटरल साइड से अगर हम लीफ को देखेंगे तो ऐसे दिखेगा आपको। लैटरल साइड से अगर लीफ को देखोगे तो ये ऐसे दिखेगा। इसका मतलब क्या है? मीनिंग इज दैट इट इज फ्लैटन। कैसे? ये फ्लैट और ग्रीन होने की वजह से ये कैसे? फोटोसिंथेटिक। अब ये ग्रीन है इसलिए कैसे? ये फोटोसिंथेटिक पार्ट है, ठीक है। अच्छा, लीफ को वाटर और फूड मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए, या तो लीफ से फूड मटेरियल दूसरी तरफ लेकर जाने के लिए लीफ पर कुछ वेसल्स होते हैं। देयर इज प्रेजेंस ऑफ द वेसल्स। नाउ व्हाट इज दैट वेसल्स?
अगर हम स्ट्रक्चर में लीफ को देखेंगे तो लीफ कंसिस्ट वेरियस पार्ट, लीफ वेरियस पार्ट कंसिस्ट करता है। एक है लीफ बेस, ओके, एक है लीफ बेस, पेटल, एक है क्या कहेंगे स्टॉक को, पेटल, से हाँ पेटल, पेटियोल, ओके। अब ये जो पार्ट आपको दिख रहा है फ्लैटेंड पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज Lamina. वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड एज लैमिना, ओके। अब ये जो वेट्स एंड हो रहे हैं, तो कुछ लीफ के अंदर जहां वेट एंड होते हैं वहां पर ये ऐसे होता है कि आपको अच्छे से मालूम है, ठीक है। तो हम इसे कहेंगे मार्जिन, लीफ मार्जिन। और ये जो पार्ट है लीफ का, इट इज कॉल्ड एज लीफ अपेक्स, इसे हम क्या कहेंगे, लीफ अपेक्स, ठीक है। तो लीफ लैमिना पर जो वेन्स होते हैं तो वेन्स के बेसिस पर डाइकॉट मोनोकॉट डिफरेंशिएट होते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा कैसे डिफरेंशिएट होते हैं, तो डाइकॉट के अंदर वेरिएशंस रेटिकुलेट होते हैं और मोनोकॉट के अंदर वेरिएशन कैसे होते हैं, पैरेलल। पैरेलल, ठीक है। और ये लीफ के सारे पार्ट हैं। पेटियोल, इट इज स्टॉक ऑफ द लीफ, पेटियोल क्या है, petiole is a stalk of leaf, okay. Base, it gives support to the leaf, okay. The next leaf lamina, leaf lamina is also called as the leaf blade, इसे हम leaf blade भी कहते हैं। मतलब एक्चुअल लीफ का जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, लीफ लामिना। एक्चुअल लीफ का जो स्ट्रक्चर ये क्या है, लीफ लामिना। और जहां पर वेन्स एंड होते हैं या तो ये जो साइड है लीफ की, इसे हम क्या कहेंगे, मार्जिन, लीफ मार्जिन। और ये जो सबसे फ्रंट वाला पार्ट है, सबसे आगे वाला पार्ट है लीफ का, इसे हम क्या कहेंगे, लीफ अपेक्स, ओके। दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, इसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। लीफ ग्रीन होते हैं, लीफ ग्रीन है क्यों, क्योंकि इसके सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है, इसीलिए हेंस leaf serve as a photosynthetic part, इसलिए leaf क्या है, leaf is a photosynthetic part, okay. So this is all about the leaf, clear, everything you already know, okay. चलो अब हम आगे चलते हैं, फ्लावर। फ्लावर एकदम सिंपल से डेफिनेशन है फ्लावर। अगर मैं आपको पूछूं कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट कंसिस्ट ए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग जो प्लांट है ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कंसिस्ट करता है, कंसिस्ट ए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। तो अब वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर क्या है, Androecium, gynoecium, Androecium and gynoecium. gynoecium. Androecium and gynoecium, but I think androecium and gynoecium present in one structure ना, Essential whorls. अच्छा essential whorls, अच्छा essential whorls कहाँ प्रेजेंट है, So flower. हाँ तो ये आंसर मुझे चाहिए। आगे डांगे ओवरी लिख रही है, चलो कोई बात नहीं, ये सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं फ्लावर के अंदर। तो फ्लावर इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट, दैट इज फ्लावरिंग प्लांट फॉर द पर्पस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब इसके डेफिनेशन बनाते हैं। एक सिंगल फ्लावर जो होता है आपका, ये फ्लावर बहुत सारे पार्ट कंसिस्ट करता है, मतलब स्टेम का छोटा सा पार्ट भी कंसिस्ट करता है, लीव्स भी कंसिस्ट करता है, और जिसमें स्टेम और लीव्स आते हैं उसे हम शूट कहते हैं, ठीक है। बट फ्लावर कंडेंस्ड पार्ट, फ्लावर कैसे कंडेंस्ड पार्ट, उसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी, तो सिंपल सी डेफिनेशन इसकी बनेगी, दैट इज फ्लावर इज ए कंडेंस्ड, इट इज एन कंडेंस्ड modified shoot, flower is a condensed modified shoot present in angiosperms। कहां प्रेजेंट होते हैं, कौन से प्लांट्स के अंदर, एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स में द फ्लावरिंग प्लांट,
चलो अब यहाँ पर एक चीज आपको इंट्रोड्यूस करा दूं कि प्लांट जो है वो कैसे होते, कितने टाइप के होते हैं, क्योंकि सिर्फ एंजियोस्पर्म में फ्लावर है, याद रखो सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में फ्लावर है, लेकिन ऐसे 4 टाइप के प्लांट्स है जिसमें फ्लावर नहीं होते। टोटल प्लांट 5 टाइप के हैं, टोटल प्लांट 5 टाइप के हैं, जिसमें सिर्फ लास्ट टाइप फ्लावर कंसिस्ट करता है, लेकिन अदर 4 ये फ्लावर कंसिस्ट नहीं करता। ठीक है, चलो इसके लिए हमको जाना पड़ेगा डाइवर्सिटी की तरफ। मैंने आपको पहले भी बताया अगर हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हम बीच में डाइवर्ट हो सकते हैं अदर पॉइंट्स की तरफ। अब इसको समझने के लिए हमको लेना ही पड़ेगा उसको। ठीक है, डेफिनेशन आप लोगों ने लिख ली होगी। डैनियल रे, ये कोई नया नंबर दिख रहा है यहाँ पर? कौन है डैनियल? ओके, तो डेफिनेशन आप लोगों ने लिखी होगी। चलो प्लांट्स देखते हैं। तो प्लांट का एक अपना किंगडम होता है, प्लांट्स का एक अपना कंप्लीट किंगडम होता है। ठीक है, अब ये कंप्लीट किंगडम है प्लांट का, हम इसे कहते हैं किंगडम प्लांटी। हम इसे क्या कहेंगे? किंगडम प्लांटी। ओके, किंगडम प्लांटी ये 2 टाइप में डिवाइड होते हैं। तो कुछ प्लांट सीड कंसिस्ट करते हैं, कुछ प्लांट सीड कंसिस्ट नहीं करते। तो जो प्लांट सीड कंसिस्ट करते हुए हम कहते हैं जो प्लांट सीड नहीं कंसिस्ट करते तो उन्हें हम कहते हैं क्रिप्टोगैम्स। दैट इज क्रिप्टोगैम। और जो प्लांट सीड कंसिस्ट करते हैं उन्हें हम कहते हैं पेनेरोगैम। ओके, अब आगे चलो। क्रिप्टोगैमी, अब ये सीड कंसिस्ट नहीं करते, दे डू नॉट हैव एनी सीड। सीड बनाने के लिए फ्लावर चाहिए, सीड बनाने के लिए फ्लावर चाहिए। इसका मतलब ये है कि क्रिप्टोगैमी फ्लावर कंसिस्ट नहीं करते। ओके, क्रिप्टोगैमी डू नॉट कंसिस्ट द फ्लावर। अब क्रिप्टोगैमी में 3 प्लांट आते हैं। क्रिप्टोगैमी में 3 प्लांट। क्रिप्टोगैमी दैट इज नॉन सीडेड प्लांट्स। पेनेरोगैमी हम इन्हें कहेंगे सीडेड प्लांट्स। ठीक है, अब क्रिप्टोगैमी डिवाइडेड इनटू 3 प्लांट्स। 3 प्लांट्स में डिवाइड होते हैं, अल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। ओके, algae, bryophytes and then pteridophytes. Algae completely aquatic. Bryophyte they are amphibians. Amphibians मतलब इसके लाइफ साइकिल का हाफ पार्ट ये वाटर में पूरा होता है और हाफ पार्ट कंप्लीट ऑन द लैंड। ओके, हेंस दे आर एम्फीबियंस। और टेरिडोफाइट ये पहले सक्सेसफुल लैंड प्लांट है, दे आर द लैंड प्लांट। ओके, अब इसको कैसे पहचानोगे आप? अलगी सिंपली हम हमारे लैंग्वेज से शेवाल कहते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइट्स मोजेस एंड टेरिडोफाइट। आपने फर्न देखा कि नेफ्रोलिपिस कौन?
टेरेडो मतलब जो, हाँ, जो प्लांट के लीफ फिदर जैसे होते हैं, फिदर, आपको मालूम है फिदर, दैट इज विंग्स ऑफ द बर्ड्स, तो जिनके लीफ फिदर जैसे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, टेरेडोफाइट कहते हैं। ठीक है, ये तीनों प्लांट में नॉन सीडेड, ये तीनों प्लांट कैसे होते हैं, नॉन सीडेड। अब दो प्लांट है, मतलब पेनोरगा में भी दो पार्ट है, दो प्लांट है, देयर आर टू प्लांट्स which consist the seed, but in which one is flowering and another one is non flowering, मतलब एक फ्लावरिंग होता है, एक नॉन फ्लावरिंग होता है। अब फ्लावरिंग मतलब क्या होता है कि इसके अंदर सीड एनक्लोज्ड होता है, ठीक है, और नॉन फ्लावरिंग इसमें सीड एनक्लोज्ड नहीं होता, इसमें सीड एनक्लोज नहीं, ओपन नेकेड है। तो नॉन फ्लावरिंग को हम कहेंगे जिम्नोस्पर्मी, ओके, जिम्नोस्पर्मी। ठीक है, अब यहां पर इन्हें हम और नाम देंगे नॉन फ्लावरिंग, जो नेकेड सीड कंसिस्ट करते हैं, दैट कंसिस्ट नेकेड सीड। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट इज अ फ्लावरिंग प्लांट, वेरी गुड, कई बार आपको बताया दैट इज एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्मी, ये हो गए आपके फ्लावरिंग प्लांट्स। और अब यहाँ पर नेकेड सीड थे, यहाँ पर कैसे हैं, कवर्ड सीड्स, एनक्लोज्ड सीड्स, आप इसको कवर्ड भी कह सकते हैं, एनक्लोज्ड सीड्स। कंप्लीट किंगडम प्लांट ही आपके सामने, कंप्लीट किंगडम प्लांट ही आपके सामने। ठीक है, समझ में आ रहा है आपके, मतलब अब आपको याद रहेगा कि मैं एग्जांपल्स जो दे रहा हूं वो कहां का होगा और कैसे होगा। ठीक है, तो अभी इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपको 11th स्टैंडर्ड में स्टडी करना है। अच्छा, इस पर कंप्लीट चैप्टर है 11th स्टैंडर्ड में, 11th में कंप्लीट चैप्टर आपको स्टडी करना है, दैट इज प्लांट किंगडम। कौन सा चैप्टर है, प्लांट किंगडम। आई थिंक 11th का या तो आपके 11th और 12th के सिलेबस में ये 8th नंबर का चैप्टर है जो मैं आपको इंट्रोड्यूस किया, 8th नंबर का चैप्टर जिसको मैंने अभी इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, चलो यहां तक समझ में आ रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इज इट डन? Yes, sir. Yes, sir. yes sir, अभी आगे चलते हैं, हमने लास्ट टाइम लीव्स देखा था, लीव्स पूरा हो गया, अभी हमको आगे जाना है रूट, दैट इज रूट सिस्टम। रूट में 3 टाइप है, वैसे तो मेजर में 2 टाइप है, लेकिन आप लोगों ने और एक टाइप मुझे बताया, इसमें 3 टाइप। एक होता है आपका टैप रूट सिस्टम, fibrous root, एक है आपका फाइब्रस रूट, Adventitious. और एक है आपका एडवांटिशियस रूट। ठीक है, टैप रूट, फाइब्रस रूट एंड देन एडवांटिशियस रूट। सिंपल है, सिंपल याद रखो इसको। सीड ले लो, अभी मैं शुरू करता हूं यहां से, ये आपका एक सीड है, ठीक है। अब ये सीड जब आप सॉइल में डालते हो तो इसका जर्मिनेशन होता है, तो जर्मिनेशन के बाद इस सीड में से 2 स्ट्रक्चर बाहर निकलते हैं, ये 2 स्ट्रक्चर बाहर निकले, इसमें से ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर जो ऊपर जा रहा है इसे कहते हैं प्लूमल, इट इज कॉल्ड एज प्लूमल। ठीक है, अब ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर नीचे जा रहा है इसे हम कहते हैं रेडिकल। ओके, ऊपर वाला स्ट्रक्चर प्लूमल है और नीचे वाला स्ट्रक्चर रेडिकल। अभी ऊपर वाला स्ट्रक्चर क्या हुआ, और डेवलप हुआ, अब उल्टा ये क्या हुआ, और डेवलप हुआ, और डेवलप होकर इसने लीफ बनाए,
Voice is not clear, sir. Voice is not clear. एक मिनट. Clear, sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके. चलो. अब ये प्लूमल ऊपर चला. ये जो प्लूमल ऊपर गया तो इसमें क्या बना? शूट. क्या बना इसमें? शूट बना. ओके. अब ये रेडिकल नीचे आया और ये नीचे और डेवलप हुआ. सी है और डेवलप हुआ. इसने क्या बनाया? रूट बनाया. समझ में आ रहा है आपके? और यहाँ पर ये आपकी सॉइल है. ठीक है. अब यहाँ पर जो रूट बना है ये कहा किस पार्ट से बना? Radical. Now this root system is called as taproot system. समझ में आया आपके? जो रूट रेडिकल से बनता है उस रूट को हम क्या कहते हैं? टैप रूट. जो नेचुरली किससे बनेगा? रेडिकल से बनेगा. अच्छा, ये रूट के अंदर और एक फीचर है. और एक फीचर है. वो कौन सा फीचर है? ये रूट के अंदर एक बीच वाला एक्सिस होता है मेन. इसे हम कहते हैं प्राइमरी रूट. अब बाद में इसकी ब्रांच बनती है. सी लाइक दिस. इसकी ब्रांच बनी. ये हेयर्स नहीं है. इट इज नॉट ए हेयर. हेयर अलग होता है. तो इसकी ब्रांच बनी. अब ये ब्रांच जो बनी है इसे कहते हैं सेकेंडरी रूट. देखो, जो पहली मेन थी उसे क्या कहेंगे हम? प्राइमरी रूट. अब जो ब्रांच बनी उसे क्या कहेंगे? सेकेंडरी. Secondary roots. सेकेंडरी को भी ब्रांच बन सकती है. ओके. अगर सेकेंडरी को ब्रांच बनती है तो देखो आप, अभी सेकेंडरी को ब्रांच बनी है तो ये जो सेकेंडरी को ब्रांच बनी इसे हम कहेंगे टर्शियरी रूट. प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी डेवलपमेंट ये सिर्फ कहां मिलता है? टैप रूट के अंदर. मैंने आपको कितने कैरेक्टर्स कहा है टैप रूट के? 2 कैरेक्टर्स. ओके. एक तो क्या है? दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम रेडिकल ऑफ सीड को या एम्ब्रियो को. मैं यहां पर एम्ब्रियो लिखता हूं. कहां से बना है? रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो. ये एम्ब्रियो के रेडिकल से बना. ठीक है. और दूसरा कैरेक्टर मैं आपको क्या बोलो? दूसरा कैरेक्टर फास्ट. Primary, secondary, and tertiary roots. वेरी गुड. जो रूट प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी रूट कंसिस्ट करते हैं तो वो रूट को हम टैप रूट कहेंगे. ठीक है. क्लियर? अभी आगे चलो आप. फाइब्रस रूट. फाइब्रस रूट क्या होता है? तो आपका प्लांट है. ये प्लांट के स्टेम, प्लांट का स्टेम जहां एंड होता है. सी, अभी यहां पर रेडिकल इन्वॉल्व नहीं है. समझ में आ रहा है आप लोग? रेडिकल इन्वॉल्व नहीं है. यहां क्या हो रहा है? आपका ये स्टेम है, यहां पर सॉइल है. अब ये स्टेम ऊपर जो भी है वो अपना पार्ट बना देगा. अब स्टेम से जो रूट ऐसे बनते हैं, ऐसे मतलब ग्रुप ऑफ रूट्स कंसिस्ट करते हैं. यहां पर देखो आप, मैंने आपको यहां पर ग्रुप्स बनाए या ग्रुप ऑफ रूट कंसिस्ट करते हैं. तो अब इसे हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड एज फाइब्रस रूट. तो फाइब्रस रूट की प्रॉपर्टी क्या बनी? फाइब्रस रूट की प्रॉपर्टी क्या बनी? फाइब्रस रूट फॉर्म्ड फ्रॉम द पार्ट ऑफ शूट दैट इज स्टेम. फाइब्रस रूट कहां से बना? पार्ट ऑफ शूट दैट इज स्टेम. और तीसरा है आपका एडवांटेशियस रूट. एडवांटेशियस रूट फाइब्रस से थोड़ा एडवांस है. एडवांटेशियस रूट फाइब्रस से थोड़ा क्या है? एडवांस. एडवांस कैसे? फाइब्रस तो बस स्टेम से बना. फाइब्रस सिर्फ किससे बना है? स्टेम से बना है. लेकिन एडवांटेशियस रूट लीफ से भी बनता है, स्टेम से भी बनता है, और पॉसिबिलिटी है रूट से भी, लीफ से भी बनता है. समझ में आ रहा आपके? मतलब स्टेम से भी बना, लीफ से भी बना और रूट से भी बना, तीनों से भी बनता है. ओके. सो दैट इज वी कॉल्ड एडवांटेशियस. तो एडवांटेशियस रूट कैसे बनेगा? वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट. वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट. एडवांटेशियस रूट बना वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट से. मोस्टली एडवांटेशियस रूट मिलते हैं मोनोकॉट में. मोस्टली एडवांटेशियस रूट किसमें मिलते हैं? मोनोकॉट्स में.
और टैप रूट्स मिलते हैं डाइकॉट में। एडवेंटिशियस रूट मिलते हैं मोनोकॉट में और टैप रूट मिलते हैं डाइकॉट में। देखो मैंने आपको डाइकॉट मोनोकॉट का चौथा फीचर भी बता दिया। इसके पहले मैंने टोटल 3 फीचर बताए थे, अब यहाँ पर चौथा फीचर भी मैंने आपको बता दिया। एडवेंटिशियस रूट मोनोकॉट में मिलते हैं और टैप रूट सिस्टम किसमें मिलते हैं? डाइकॉट में। क्लियर? समझ में आ रहा है आप लोगों के? यस सर। ओके, Yes, sir. ये हुआ अबाउट द रूट। और रूट का काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट? जैसे स्टेम प्लांट को कंप्लीट सपोर्ट देता है, वैसे रूट प्लांट को मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट प्रोवाइड करता है। वो क्या है? दैट मींस प्रोवाइड वाटर एंड मिनरल्स। और इतना ही नहीं तो ये क्या करता है? ये वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करता ही है, तो इसको मैं 1 नंबर दूंगा। और दूसरा एंकरेज। सॉइल में तो रूट होता है, सॉइल में तो रूट होता है, तो मतलब सॉइल से एंकरेज, ठीक है, तो ये रूट प्रोवाइड करेगा। क्लियर? समझ में आ रहा है आप लोगों के? एक तरीके से एंकरेज दे रहा मतलब क्या कर रहा है? सपोर्ट दे रहा है, सपोर्ट। अच्छा, कुछ रूट स्टोरेज भी करते हैं, कुछ रूट स्टोरेज भी कहते हैं, तो इसके लिए एग्जांपल लेना पड़ेगा स्वीट पोटैटो। इसके लिए एग्जांपल कौन सा लेना पड़ेगा? स्वीट पोटैटो। यहां पर एग्जांपल दे दो, एग्जांपल स्वीट पोटैटो। और एक एग्जांपल देंगे हम दहालिया। आप कैरेट भी ले सकते हो, आप कैरेट भी ले सकते हो, ठीक है? इज इट क्लियर? समझ में आ गया आपके आज आपके? Yes, sir. Yes, sir. दिस इज अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स। ये क्या हुआ? प्लांट की मॉर्फोलॉजी। अब कल के लेक्चर में हम देखेंगे एनिमल्स की मॉर्फोलॉजी। एकदम सिंपल, ज्यादा उसके अंदर डेप्थ में नहीं जाना है क्योंकि अब वो 11th में ज्यादा डेप्थ के अंदर देखना है, ठीक है? यहां तक अगर समझ में आ गया होगा तो हम यहां पर स्टॉप होते हैं। आज मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा यहां तक की, ठीक है? तो ये पीडीएफ के अंदर जो एमसीक्यूज होंगे उसको आपको सॉल्व करना है, ओके? Yes, sir. अभी आज अबाउट 60 स्टूडेंट्स कनेक्टेड थे, अब इसमें से अभी लास्ट में बचेंगे 54, ठीक है? और ये बढ़ते जाएंगे आगे चलकर। चलो जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे देखेंगे, लेकिन जो नया आएगा मतलब जिनका एडमिशन लेट होगा वो क्या करेंगे? जिनका पहले एडमिशन है इनसे क्या करेंगे ये लोग? जो हो चुका है उसका मटेरियल लेंगे, इनके पहचान के होंगे, इनके फ्रेंड सर्कल हो सकते हैं, तो इनसे व्हाट्सएप पे हो या तो कोई भी चीज पर उसको क्या करेंगे आप मंगा के लिए, क्योंकि हम इस वीडियो का कोई रिकॉर्डिंग आपको नहीं दे रहे हैं। आगे चलकर आपको श्री गणेश प्लस चैनल के ऊपर में भी आपको रिकॉर्डिंग मिले, लेकिन अभी कुछ भी आपको इसके अंदर नहीं मिलेगा, ठीक है? चलो हम यहाँ पर रुक जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।